Good morning dear students, this is Anil Kumar from online classes and today आज जो हमारा टॉपिक है The Lake Isle of Innisfree. This is a poem by W.B. Yeats, The Lake Isle of Innisfree. And now I would like to tell something about W.B. Yeats, means William Butler Yeats. You know William Butler Yeats, he is an Irish poet and he got Nobel Prize in 1923 and his beloved name was Maud Gonne. And if I talk about the beloved in English literature, that first William Shakespeare, his beloved name was Dark Lady, and John Keats' beloved name was Fanny Brown, and John Donne's beloved name was Annie Moore, and now William Butler Yeats, his beloved name was Maud Gonne. So I would like to tell something about the great important poems of W.B. Yeats. You know that W.B. Yeats, an Irish poet, got Nobel Prize in 1923 and he wrote many great poems. If I talk about the great poems of W.B. Yeats, now first Sailing to Byzantium and Byzantium. These are the two great poems of W.B. Yeats. And Sailing to Byzantium, in which the poet talks about the young people. He praises the young people and hates the old people. He says in the opening line, he says, this country is not for young, so this country is not for old people. There is no country for old people. In the opening line, he says there is no country for old people. Means he is hating the old people. He says that this country is only for the young people. And the next important line in this poem, he says, an aged man is but a paltry thing. He says an aged man but a paltry thing. Means he is not respecting the old people. He says that this country is like only for the young people and old people are waste. They are worse. And if talk the next important poems of W.B. Yeats, The Second Coming. Now the Second Coming, there is very important line, things fall apart, and there is a novel, Things Fall Apart by Chinua Achebe. It is a great novel. So the Things Fall Apart by Chinua Achebe is taken from The Second Coming, W.B. Yeats. And next important poem of W.B. Yeats is A Prayer for My Daughter. This is very great poem of W.B. Yeats, A Prayer for My Dear Daughter. In this poem, the poet talks about his daughter. He says that his daughter means he is praying to God that the beauty of his daughter must be not too much or not too less. And he also says that his beauty should not like the Helen. You know, Helen was the most beautiful girl in the world and that was the cause of the Trojan War. And next important poem of W.B. Yeats is Anne Gregory and The Lake Isle of Innisfree. So today we will discuss about the poem The Lake Isle of Innisfree. Now let's start the poem. And some also important poems of W.B. Yeats like Leda and the Song. And one more thing I would like to tell about W.B. Yeats, that W.B. Yeats is a great symbolic poet. Means there are a lot of symbolism in the poem of Keats. So The Lake Isle of Innisfree. Now we will discuss about this poem, The Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats, an Irish poet, got Nobel Prize in 1923. So this poem is full of spirituality, and in this poem the poet is talking about the natural life, about the natural things. And you know that W.B. Yeats is very fed up of this materialistic life. He wants to live in a very peaceful life. Means he is feeling very tired. W.B. Yeats बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं. वो एक एकांत में जाना चाहते हैं. सो इनिस्फ्री जो है, दिस इज ए लोनली प्लेस एंड यू कैन से दिस इज एन इमेजिनरी प्लेस. ये एक काल्पनिक स्थान है जहाँ पे W.B. Yeats जाना चाहते हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड की लाइफ से बहुत ज़्यादा थक गए हैं. तो आइए देखते हैं. I will arise and go now and go to Innisfree.
पहली लाइन में कहते हैं कि आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और चला जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? टू द इनिस्फ्री, इनिस्फ्री चले जाएंगे। इनिस्फ्री हमने आपको बताया दिस इज एन इमेजिनरी प्लेस ऑफ WBEDS वेयर ही वांट्स टू गो एंड टेक ए वेरी पीसफुल लाइफ, ए वेरी लोनली लाइफ। आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और चला जाऊंगा, एंड गो टू द इनिस्फ्री, कहाँ जाऊंगा? इनिस्फ्री जाऊंगा, एंड ए स्मॉल कैबिन विल देयर, और वहां पे जाके एक छोटी सी कैबिन बनाऊंगा। कैबिन मतलब ए स्मॉल कॉटेज वी कैन से, एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा आप क्ले, और कैसी बनी होगी? क्ले एंड वाटर मेड, क्ले एंड वाटर मतलब कीचड़ की बनी होगी। इस तरह से कच्चा घर जो हम बनाते हैं क्ले एंड वाटर सीमेंट, एक मिट्टी से बनी होगी। 9 green rows will I have there, और वहां पे मैं 9 green rows क्या है? दिस इज द नेम ऑफ वेजिटेबल्स प्लांट। वहां पे जाएंगे, एक झोपड़ी बनाएंगे और वहां पे सब्जियां उगाएंगे। I will have there a hive for honey bee, और क्या करेंगे? हाइव, हाइव मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, फॉर हनी बी, वहां पे मधुमक्खी पालेंगे, शहद को प्राप्त करेंगे। इस तरह से WBEDS कहते हैं कि मैं उठूंगा और चला जाऊंगा इनिस्फ्री, वहां पे जाके छोटी सी एक झोपड़ी बनाऊंगा, अपने लिए कुछ सब्जियां उगाऊंगा और मधुमक्खी पालन करूंगा। तो दिस इज द थिंकिंग ऑफ WBEDS दैट ही इज फीलिंग वेरी टायर्ड ऑफ दिस मेटलिस्टिक लाइफ एंड ही वांट्स टू स्पेंड हिज लाइफ इन ए वेरी लोनली प्लेस लाइक इनिस्फ्री एंड लिव एलोन, वहां पे मैं अकेले रहूंगा। इन द बी लाउड ग्लेड, बी लाउड ग्लेड मतलब उस मधुमक्खियों के साथ, उस मधुमक्खियों के साथ उनकी भनभनाहट को सुनूंगा। तो इस तरह से इस पोएम में WBEDS हमको बताने का प्रयास किया, मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द नेचुरल लाइफ, a very spiritual life and I have some peace there, वहां पे मुझे क्या मिलेगी? पीस, शांति मिलेगी। तो यहाँ पे WBEDS एक शांति खोजते हैं, एक फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, और वो कहते हैं कि वहां पे मैं शांति प्राप्त करूंगा। और शांति कैसे आएगी? पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे आएगी, उनको शांति बहुत धीरे धीरे मिलेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जिस तरह से जब सुबह का प्रकाश होता है, सुबह की किरणें जब पड़ती हैं तो उसको देखने से हमको काफी ज्यादा आनंद मिलता है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से वहां पे इनिस्फ्री जाकर के उस सूर्य के प्रकाश को देखेंगे, उस सुबह की पहली किरण को। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, और वहां पे क्रिकेट मतलब क्रिकेट एक प्रकार का इंसेक्ट है, इंसेक्ट, क्रिकेट मतलब उसको झींगुर बोलते हैं, तो उस झींगुर की आवाज को सुनेंगे। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर, और रात में वो क्या देखेंगे? दिन में उन्होंने बताया कि जब सुबह सूर्य का प्रकाश उगेगा तो उसकी पहली किरण को देखेंगे। उसके बाद रात में उन्होंने बताया ग्लिमरिंग देखेंगे। ग्लिमरिंग मीन्स टिमटिमाना, उन तारों का जो टिमटिमाना है। देयर मिडनाइट, आधी रात को, ऑल ए ग्लिमर, वे तारे को टिमटिमाते हुए देखेंगे। एंड नून ए पर्पल ग्लो, नून मतलब होता है दोपहर के समय, दोपहर के समय ए पर्पल ग्लो, पर्पल ग्लो मतलब उस बैगनी कलर के जो फूल खिलेंगे वहां पे, उसको देखेंगे। एंड इवनिंग, और शाम के समय फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, लिनेट मीन्स इट इज ए काइंड ऑफ बर्ड, विंग्स मतलब पंख। तो यहाँ पे WBEDS सुबह से दोपहर से शाम तक सारे वर्णन को करते हैं, मीन्स ही इज टॉकिंग इन द मॉर्निंग टाइम। In the morning time he will feel, he will see the first rays of the sun, and in the afternoon time he will see the multicolored flowers, and in the evening time he will see the birds, the wings of the linned birds. So these are the natural things the poet is talking in this poem. I will arise, मैं उठूंगा, and go now, और चला जाऊंगा, for always day and night, मैं हमेशा के लिए उठूंगा और चला जाऊंगा। I hear lake water, और मैं क्या सुनूंगा वहां पे? लेक वाटर, झीलों की जो लहरें हैं। यहाँ पे अभी इनिस्फ्री गए नहीं है WBEDS, वे इस तरह से सोच रहे हैं मैं वहां पे जाऊंगा। और यहाँ पे कहते हैं कि आई हियर, मैं सुनता हूँ, लेक वाटर, उन झीलों की लहरों की आवाज सुनता हूँ। लैपिंग विथ लो साउंड, जो धीरे धीरे आवाज करती हैं। बाय द शोर, समुद्र के किनारे, ऐसा लगता है कि वो समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और लहरों की जो आवाजें हैं, लहरें उनके पैरों से टकरा रही हैं। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, कभी कहते हैं कि जब मैं रोडवे पे खड़ा रहता हूँ, लंदन की
कि जब सड़कों पे मैं खड़ा रहता हूँ, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, या मैं उसके पेमेंट्स पे, उसके फुटपाथ पे खड़ा रहता हूँ, आई हियर, मैं सुनता हूँ, मुझे सुनाई देता है, इट इन द डीप हर्ड कोर। तो यहाँ पे WB से एक इमेजिन करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि जब मैं लंदन की सड़कों पे, उस धूल भरी सड़कों पे खड़ा रहता हूँ, उस समय मुझे सारे आवाज़ सुनाई देते हैं। सो दिस इज द पोएम द लेक आई लव इनिशियली बाय WB Yeats। And once again I would like to tell that he is an Irish poet। So आज के लिए इतना ही।